going to be out there on the 10th of June. You know, filmmaking is a very strong and very difficult process. Making a film is one zone and then releasing a film is another zone itself. So congratulations to everybody now that, you know, you've got a release date, it's going to be out there. I know heart and soul has been put into it. So we've got a few producers. It's produced by Shailesh Singh, Madan Paliwal, Sutappa Sikdar and Shailaja Kejriwal. So just a big round of applause for getting it out there. Actually, when I saw Drishyam, I remember I enjoyed it more the second time I saw it because that bit in the end was fantastic, and that's why I would like to invite this gentleman on stage who just knows how to make cinema look very real, very gripping. The editing is always fantastic, keeps you in a bit of a loop. Nishikant Kamath के लिए तालियां हो जाए और एक माइक भी दे दो सर को. Thank you sir, and yes, like I said every time, आपने बहुत हार्ड जिंदगी सर महसूस की होगी, इतना रियलिस्टिक हर चीज दिखाते हैं, and you know you just somehow manage to portray it not like a film. You know, when you're watching your films, it looks like this is a part of life. It's just happening out there. There's a camera जो by mistake वहाँ पे लगा दिया था, and all the performances happening. But that's not the way it is, because I know you're somebody who shows the scenes very well. Also, you're a fantastic actor, so you showed across like that. So, what is the thought process that goes behind a film that you always make, which looks so real? Good evening, everyone. To start with. I wouldn't know exactly because I've always followed my instinct while making a film and tried to stick into some particular zone. Also tried to try different genres. I've never tried to go into one zone, but somewhere it has been how I would like to watch a film. That automatically reflects in the film, I guess. And reality maybe comes natural to me is because our upbringing is very middle class. I've come from a very middle class background. So reality comes very easily to me. Probably that is the reason. And a bit of theatre background, so probably performances also come easily. That's about it. Whenever somebody has a theatre background, they're very strong with scripting, editing, very important. I think a film can be lost in an edit. Performances अच्छी हो जाएं, लेकिन उसका edit अगर सही नहीं रहता है. So I hear you're very hardcore with, like most directors are, but you're very particular about that also. You constantly go back and forth, back and forth, back and forth. So this perfectionism is bachpan se hi? No, two things. First of all, I've got a great editing team. Arif Sheikh, my editor, is a very fine editor. And also, in fact, I can become a problem for him because I used to be an editor before. So I've spent first 5 years of my life editing. So probably. So do you let go when you're there? You let him do his work? 100%. Because he's such a fantastic editor. I generally don't. Only few things if I feel I'll suggest, but it's all his, maybe. Now this film was it's been made for a while, and you know is the process. Like I said, picture बनाना तो बहुत सारे लोग बना देते हैं picture, but the whole the relief of it, you know, coming out every time, is it new for you, or sometimes do you take it for granted, and then when it does come out, you're saying, oh my God, you know, because a film release, now that I've seen the other side also for a long period of time, I feel यार picture बनाना बहुत dangerous काम है. No, I mean every picture has a process. It goes through the entire procedure of एक कहानी जन्म लेती है, लिखी जाती है, फिर actors lock होते हैं, producer आते हैं, और finally picture shoot होती है, बनती है, edit होती है, release होती है. Release के एक अलग paraphernalia से. तो ये procedure जब this is my 8th film, so first 3-4 films I used to feel ke, you know, it's too long, it's never ending. But now probably you start living with it. Because in fact I've been lucky, I've made 4 films in last 2.5 years. So that has been एक फैक्ट्री खड़ी कर दी है. अभी तो आपकी फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी तो प्रमोशन पूरे बाकी है. अभी 1 महीने के लिए नॉन स्टॉप एवरीडे कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा. बट आपके साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दुनिया भर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. Whenever I see him, he's now so cool and coming like a Buddha. Even what he's wearing today, I like to call, I use great very rarely with actors, but he is great. Irfan sir, would you please come on stage? शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. सर ये प्रोसेस ये तो जी लेते हैं, जैसे कि आगे पीछे चलते रहता है. पहले वो थोड़े से नर्वस होते थे, पहले वो निकलते थे, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ कंट्री में कुछ ना कुछ जगह पर एक पिक्चर अगर रिलीज हो रही होती है, how is it that excitement? Yes, this is probably a dual excitement, and we'll come to that, how it's a dual excitement for you as well. But when you see a film like, first of all, congratulations on Talwar. I think a big round of applause for Talwar. I think it was one of the finest films last year. I remember standing around stage when you were also there, and it wasn't promoted that much, but my God, it just kept on and on and on. So
your choice of films, whether it's Piku, whether it's a Talwar, whether now it's a Madari, it just gets better and better. What is that formula that you managed to do so well all across the world? Actually, you know, Abhi bhi I'm the beggar, I'm not the chooser. I'm still, you know, whatever comes in your way, you want to, the script should ring something inside you, you know, it should do something to you. And then you know, try to see whether the people will be engaged or it will be an indulgent film. I sometimes do indulgent films, but, you know, I keep a balance, you know, because you have to survive in the market also. So this is a film which was very, subject was very close and it had something, you know, simple story, but the emotion was so powerful. And, you know, we developed and then we were looking for somebody, Shailesh and Shalja and Shudapa, that we find some director and which, you know, which can feel what it is. और निशी ने पहली बार पढ़ी and it was like, you know, as if he was there from the beginning. And बड़े इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज में. निशिकांत कामत सर के बारे में कुछ एक लाइन बताएं, जब इंटरेक्शन कैसे रहता है? सब लोग बड़े ब्रूडिंग टाइप रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है. ब्रूडिंग अगर आप बात करोगे तो मतलब कुछ डांट पड़ जाएगी आपको. अच्छा. लेकिन हमेशा निशी के सेट पे जो है माहौल बिल्कुल मेडिटेटिव होता है. इट्स लाइक सब लोग जो है जोन में है एंड ही इज कॉन्स्टेंटली, यू नो, इन अ जोन एंड विच ऑल्सो, यू नो, इट हेल्प्स अ लॉट. लाइक अभी हम गाना शूट करके आए एंड हमें इन्होंने रखी 2 बजे की शिफ्ट हैदराबाद में. अच्छा. एंड मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है कि यार कैसे करेंगे शाम तक. अभी 2 दिन पहले. अच्छा अच्छा. एंड कट करना चाहते हैं हर चीज? नहीं, वो आई थिंक ही रिलाइज ऑन व्हाट हैपेंस देयर. लाइक इस पूरी फिल्म के अंदर हमें पता नहीं था क्या होगा. यू नो, शूटिंग करते वक्त जब सेट पे आते थे तो इनका भी दिल धड़क रहा होता था, मेरा भी धड़क रहा होता था कि यार किस डायरेक्शन में जाएंगे हम. But then that's a very interesting process when, you know, when you leave things to happen, and when they happen, you know, it's a pleasure. Did you also leave it to be because you knew that he was around and Jimmy Shergill is around? No, I was blessed with such great actors around. I mean, he's one of the finest in the country, and it was such a great pleasure, honor to work with Irfan Sahab again. We worked like 7-8 years back in Mumbai Mere Jaan. After that. And most importantly, you know, it was much easy to interact and understand, because the understanding somewhere, I think so we are similar in understanding scripts and everything. And nothing to say about performances. I mean, मेरे को याद नहीं है कि कभी dialogue के लिए retake हुआ है. That never happens from that end. कभी सिर्फ हाँ कभी लगा सर थोड़ा ऐसा करेगा वैसा करेगा, but he used to think so much about the character before coming on the set, and that was amazing. I mean, the detailing he used to go into, right from his costumes to everything. In fact, we have a child artist, 8-9-year-old, 7-year-old. We were shooting in Jaisalmer, Rajasthan. And when he came for the shooting, Irfan saw the kid and he said कि नहीं यार, ये अगर धूप में इतने दिन से चल रहा है तो काला होना चाहिए. हाँ, उसको यहाँ tan होना चाहिए. And he personally took the makeup thing and, you know, tanned the guy and all. So that's the level of interest he takes in a film, and it's a great honor to work with such a person. So you are saving more money also, sir, because you're producer. ये है कि हमें मजदूरी करनी पड़ती है. हम नहीं चला सकते ऐसे काम ना कि थोड़ा लीपा पोती की और आके कुछ भी लाइनें बोल दी. हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है. तो हमारा काम हमेशा मजदूरी बना रहेगा. But it's a fun. But now added pressure on you. आप producer भी हैं तो, you know, now you got another name attached with your. सही टर्मिनोलॉजी है. मतलब मैं प्रोड्यूसर, मेरा सिर्फ जो योगदान है प्रोड्यूस करने का वो इतना ही है कि हमें लगा था कि ये फिल्म जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे सीधा समझ में नहीं आएगा कॉर्पोरेट को. उनको जो है कन्विंस करना मुश्किल होगा. तो शैलेश साहब आए एंड देन हमने थीम अरेंज करना एंड प्रोजेक्ट को डेवलप करना, वहाँ तक ही था मेरा. उसके बाद मैं पीछे हूँ, बाकी सब इन्होंने और इनकी टीम ने संभाला है. इनकी कहानी तो हम थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन another actor who I feel I think he is one of the most underrated performers, but one of the finest performers. और ये आज भी वैसे ही लगते हैं जैसे वो 15 साल पहले लगते थे. ये राज मुझे पूछना जरूरी है जिमी शेरगिल साहब के लिए, इनके लिए तालियां हो जाए. And he has evolved as an actor, fantastic, you know. He was always brilliant, sir. Thank you, good evening. जिमी सर, लेकिन ये बताएं सर, मैं आपको 10 साल से देख रहा हूँ सर, वैसे का वैसा, स्किन भी वैसी है सर, स्माइल भी वैसे, एवरीथिंग इज द सेम. प्लीज कैन यू टेल अस व्हाट डू यू ईट और नॉट ईट? टेंशन खाता हूँ. बहुत टेंशन खाता हूँ, तो आई थिंक उसी की वजह से. नहीं, यू बीइंग वेरी मॉडेस्ट. सुबह से शाम जिम, नो ईटिंग आफ्टर 4 o'clock इन द आफ्टरनून ओनली, आई एम श्योर. ऐसा कुछ है सर आपका रेजीम? बोला सर, टेंशन खाता हूँ. सिर्फ टेंशन खाते हैं? सिर्फ टेंशन खाता हूँ और पीता भी. पानी. टेंशन खाता हूँ, टेंशन पीता हूँ. A gentleman here who, again, like I said, is a powerhouse of talent.
इनको देख के ऐसे ऐसे डिस्कशन ज़्यादा रहती थी, या फिर ये भी बुद्धा वाले सेट में इन्वॉल्व थे, जैसे जस्ट सिटिंग आराम से एंड लुकिंग एट द मॉनिटर? No, again, as I said, also in case of Jimmy, such a fantastic actor, such a fantastic talent, he used to come in his own way prepared on the set, and he's that a very silent person, doesn't speak much at times on the set, but he used to concentrate really well on the role, and his contribution was always tremendous, saying that मैं ये line ऐसे बोलता हूँ या ये ऐसे बोलूँ क्या, so that always तो सर वो कहानियां जो हम कई बार सुनते हैं, वो जो किस्से कहानियां फिल्मों के होते हैं लंच टाइम पर और वो ऐसे नहीं हुआ आपके सेट पे कि यार ऐसे कहानी, अरे मैं जब वहां शूटिंग कर रहा था ऐसा कुछ है? ये एकदम मतलब बहुत ही वर्कहॉलिक सेट टाइप लग रहा है। वर्कहॉलिक नहीं था, लेकिन गॉसिप फ्रंट जीरो था। चलो, डजंट मैटर, दैट आई लीव लेटर ऑन इफ यू कैन फाइंड समथिंग। आई नाउ लाइक टू इनवाइट वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन स्टेज, Shailesh Singh. For a month's relation say he's backed some big films, and one of the directors, Hansal sir, is here as well. Shahid Tannu, it's Mannu Aligarh and now Madari. It takes guts to back strong films with very very strong potential, but sometimes you don't know, क्योंकि ये audience पर always question mark रहता है। You know, हम लोग को theater के अंदर private screening पर वाह 7 stars, 9 stars, sometimes even 10 stars. But as a producer वो दिल ज़्यादा धड़कता है कि 1 day before, 2 days before, 1 week before? आई थिंक मेरा कभी नहीं धड़का। मैं सिर्फ जब कहानी सुनता हूँ मुझे लगता है ये फिल्म बनानी चाहिए, फिर मैं ये नहीं सोचता ये कैसे बनेगी, बस मैं निकल जाता हूँ बनाने के लिए। और कभी रिजल्ट को सोच के आज तक एक भी फिल्म नहीं बनाई मैंने। तो मुझे पता था ये फिल्म भी, चूँकि इरफान सर ने बुलाया था मुझे कि ये कहानी सुनते हैं अच्छी है, मैंने सुनने के बाद बोला हाँ चलो करते हैं। आप रिजल्ट के बारे में सोचते नहीं एंड यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ फिल्म? मैंने आज तक नहीं सोचा। But that's a very difficult zone sometimes to be in as a producer. ये कैसे, is this because you like writing stories yourself also? You had a inbuilt बचपन से कि मेरे को बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद थी, तो मेरे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? नहीं भाई, मैं प्रोड्यूसर बनता ही नहीं अगर मुझे ये सोचना था रिजल्ट क्या है, कुछ और करता। मुझे पता नहीं था ये बात था। But like I said, ये चिल्ड माहौल जो सेट का था सर, वो प्रोड्यूसर्स की तरफ भी चलेगा, तो मेरे ख्याल से ये वैसे ही हुआ है। आई थिंक ये क्रेडिट निशी सर को जाता है, क्योंकि सेट पे कभी लगा नहीं हम लोग की शूटिंग कर रहे हैं, टेंशन है कुछ, ये अपने जोन में हमको मतलब बेकार कर दिया था थ्रू आउट द शूट। But it's nice, well thought of set and well thought of you know, all situations, pre-production, always very important. I'd like to also now call on stage the head of Mirage Entertainment, Sonal Deshpande. You've got a huge, yes, a big round of applause, ladies and gentlemen. Welcome, ma'am, and you all have a huge presence as far as exhibiting film is concerned, and I think वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है कि फिल्म कैसी थी। आपके लिए तो काफी रिजल्ट ओरिएंटेड होता होगा क्योंकि आप एग्जिबिट करते हैं, बट नाउ कमिंग टू द अदर साइड एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, आजकल एक मैरिज की बहुत जरूरत है। सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं सोच सकता, यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, तो दैट इज द रीजन व्हाई यू ऑल केम इनटू दिस जोन। गुड इवनिंग एवरीवन, इरफान साहब, निशी एंड जिमी, Shailesh, thanks everybody. Actually, exhibition and production gel with each other. If you're an exhibitor, I think so. If you want to make a brand, you have to get associated with good films. And I feel when we have seen this film, it was an instant reaction from all the team that we have to go and acquire this film. Because the combination of Nishi, Irfan and the story, screenplay, everything was amazing. So I think so this is going to be a treat for the audience, and the climax and everything is, you will just looking at the film, you'll get stunned. Even with the trailer we've got stunned actually because but are you a general film lover yourself also? बहुत सारे लोग फिल्म के बिजनेस में होते हैं लेकिन हर फ्राइडे के फ्राइडे पिक्चरें नहीं देखते हैं, आप देखते हैं? जब भी मौका मिलता है मैं देखती हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था, but yes, we're glad that you know you have come on board this film, and now a lady, a very special lady I'd like to call on stage. Well, this project, the story, the light behind, let's just put it this way, if the guiding light was or the light moving forward was done by Nishikant, this lady was involved in making sure that happened. Shutappa Sikdar, I'd like to invite you on stage. Big round of applause, ladies and gentlemen, for those not in the, yeah, there we go, Irfan sir's wife. And Miss Moneybags is how I'd like to call you, because I hear, ma'am, कि all the financial decisions आपके थे, and you decided a number of things on set. Yes, no, yes, no, yes, no. Is that true? That's not true at all. Really?
That's not true at all. First of all, I would like to thank especially Shailesh, because it's very difficult today to find somebody to believe in something which is little not so told. So to think of an idea, to get it fruition on the screen is a long journey. And without Shailesh, I don't think we would have been able to do it. And he's the first person we told the story to. He's the first person he said, "Main banaunga." So we didn't, our journey got short in that sense. We didn't have to go and narrate the story to various people. Nishi says it's his 8th film, it's my first film, so I'm very, so I don't know the journey. But it does help when you have that gentleman in your corner, you know, when you go to narrate a story, oh, by the way, you know, it's Irfan's film as well. Doesn't it help? Must be, make you feel very proud. Yes, yeah, but it's like, I mean, I am very proud of the story myself. But that's actually, like I said, it's half the battle won, but you still have to have a tight story, otherwise you cannot move forward with it. Yes. Now, since you have chosen to say that, you know, when you did think of the story, and when you came up with the concept like that, was there a lot of brainstorming there? Are you somebody who's a writer? Yeah, and that's why? we and Shailaja worked together. It was just a seed. And before we came to Irfan also, we worked for a year to come to Irfan, because Irfan is very, 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 very fussy about scripts. And I see him rejecting 2 films at least every day. So we were very nervous. Yeah, so who did the narration? Who did the narration? The narration first, Shailaja did little bit and I did it in the more. And then we had Ritesh who wrote the screenplay and then we gave a final narration to him. But he read the story and he said, I like it. Achha. So which gave us the confidence to develop it. I have to ask you this. जब आपकी वाइफ आपको नरेशन दे रही थी, तो उस समय आप कैसे आप भावुक नहीं हो रहे थे और कैसे आप बड़े ऑब्जेक्टिव हो रहे थे सर? सर हमारा काम का रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा एमिकेबल है नहीं। अच्छा। हम लोग जब काम करते हैं साथ में झगड़ते ज़्यादा हैं। अच्छा। तो इनको अगर नरेशन भी देना होगा तो किसी और से दिलवाती हैं ना। सो वैसे यू नो शी इज़ द बेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क. She understands, she has a better understanding of performance. She has some understanding which I have, you know, I have cultivated in drama school, but I think she's inborn, she has that talent. So I rely on other things on her, you know. If I know, if she says that this is a good performance, I know I'll blindly take it that it's a good performance. So she has been a kind of, you know, inspiration for me to shape me as an actor. And I'm so glad that it's actually come out. He's come out very fine, I have to say. Well done. Okay. Now, Nishant Pitti, I would like to call on stage, the CEO and co-founder of easemytrip.com. Ladies and gentlemen, big round of applause as well, please. Thoda aage, if you could just move a little ahead. Yeah. Now, you all have been pioneers in e-travel, you know, which is now the world. I mean, everyone wants to travel the world and they want to know how to do it. They want to press a button, and that happens with you all. And you all have come into films now. Film presenting is, was it like, you know, like the glamour of the world and the story and everything that you want to be part of? Is that the thought process, or just generally your film lovers as well? So it depends basically. If you see travel and Bollywood are intertwined to each other. You show up the map of the culture and the heritage to the world. Yeah. So the same way we also do, right? Yeah. So it's intertwined to each other. So that way we plan to do something in the Bollywood industry. And if you talk about me personally, I'm also a movie lover. So I saw the. Do you watch films every Friday? Do you watch them on Saturdays, Sunday? Not actually Fridays and Saturdays. You wait for the reviews and you wait for what the critics have to say and what people have to say and then watch it. No, not like that. Yes, just on and off when I got time, so I go and watch of the movies. But now, sir, you will be seen in the forefront because now this is your film. Now you have to. You will see. Absolutely. All right. So now, ladies and gentlemen, I would also yes. I want Sanju to come on stage. Without him, the journey was not, you know. He is the most important person of our, you know, family. And before I call a large part of the crew on stage and all that, I'll just move off and I'll open up for questions. Though I've asked quite a few myself, I know already. पिछले दिनों जब ये पोस्टर आया तो कई तारीफें भी हुई, ट्विटर पे भी लिखा गया, आंखें आपकी बहुत कुछ कह जाती हैं. तो खुद की आंखों पे कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको सुनने में आया हो पिछले दिनों में, पिछले सालों में? सर ये सब जो है भगवान की देन है सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान की कसम. और इसका मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या आप किस आंखों में क्या है क्या नहीं है. बट हाँ, लोग बात करते हैं, मेरे फादर बात करते थे, मेरे फादर कहते थे कि आंखें हैं कि प्याला है. तो मैं सो आई थिंक यार ये सब कुछ ऐसा है. तिग्मांशु ने डायलॉग भी ली दिया हमारी फिल्म के अंदर कि साली आंखों के चक्कर में जो है लड़कियाँ हमसे कतराती हैं. तो ये तो मैं नहीं चाहता कि यार लोग जो कतराएं हमसे आंखों के चक्कर में.
आई डोंट नो, इट्स आई थिंक जो शरीर है, जो बॉडी है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, बट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका उसमें कोई लेना देना है नहीं, वो सब ऊपर वाले का दिया हुआ होता है। तो क्रेडिट या जो बदनामी या नाम सब जो है उसका है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इनसे मिलती होंगी घर पे ऐसे तो। आँखों के बारे में? जी जी जी। आज तक मुझसे तो कहा नहीं है, तुमसे क्या कहेंगी? सर आज कहेंगी ना। मुझे लगता है कि इनकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं, जो बहुत क्लीशेड लाइन है, बट मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है इसकी इनकी बहुत डायलॉग्स की तारीफ होती है, बट मुझे लगता है उतना एम्फेसिस इनके साइलेंसेस पे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब टेक्स्ट आंखें ज़्यादा बोलती हैं, वही मैं पढ़ती हूँ पिक्चरों में। इसका मतलब ये है कि घर में जो है साइलेंस अच्छा है। सर ये लंबा जर्नी था, उसका हर स्टेप पे हमें पता नहीं था क्या होने वाला है, और निशी साहब के साथ की वजह से हर चीज़ जो है धीरे धीरे इस निशी एंड फिर जिमी केम इनटू पिक्चर। आई थिंक इंजॉयबल सफ़र रहा है, बट इट वाज नॉट जैसे होता है ना कि एक फिल्म आप एक कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये तो मतलब ऐसे करेंगे, आपको सब पता होता है। ये फिल्म ने अपने आप को रिवील नहीं किया कभी भी हमें, ये हर मोड़ पे हमको टेस्ट करती रही। हमने 75% शूट कर लिया था, तब भी हम क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे कि यार कहाँ उसको क्या करें, कैसे करें, एंड ये इवॉल्व हुई है फिल्म। जैसे गाना भी हमें शूट नहीं करना था इसका, अभी जो इसका जो मेन गाना है, लेकिन फाइनली एकदम से डिसाइड हुआ एंड एक दिन में निशी साहब ने तैयारी की और हम हैदराबाद करके शूट करके आए हैं। तो मैं पहली बार शायद मैं कोई लिपसिंग करूँगा लाइफ में, तो मुझे डर भी लग रहा था। तो टेस्टिंग सफ़र रहा है एंड इंजॉयबल रहा है बहुत। Irfan, brilliant trailer and a great performance as always. Oh, thank you so much. I remember in 2003 came a movie Hustle where you worked with Jimmy. You were the villain in the movie, and I remember in those days the posters hardly had your presence. Today you are the leading man. The poster has only you in it. Tables have turned. What do you have to say about your rise to glory from Hustle to Matari? I was there in the poster, but मेरे पर वो थोड़ा धूमिल था, मतलब पीछे वो कम था, लाइट कम थी। तो वही सफ़र यही होता है कि आप पर लाइट कब आएगी और आप अपनी जैसी स्टोरीज़ कब कर पाएंगे, एंड तो उसी के लिए कोशिश रही है कि आप अपनी तरह की स्टोरीज़ चुन पाएँ और अपनी तरह की कहानियाँ कर पाएँ और अपनी तरह से लोगों को एंगेज और एंटरटेन कर सकें। तो वो फिर ऊपर वाले के हाथ में जब वो आपको बैटन थमा दे, तो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और उसका श्रेय जो है बहुत कुछ हमारी नई जनरेशन जो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स की है वो, और ऑडियंस को बहुत बड़ा श्रेय है उसका। अगर ऑडियंस ये नहीं होती तो हम अब इस जगह पे खड़े होकर ये बात नहीं कर रहे होते। Also, June 10th को फिल्म आ रही है. It will clash with Amitabh Bachchan and Nawazuddin Siddiqui's Teen. Any concerns on that front? Is there film on 10th? Yeah. Okay. Teen, Amitabh and Nawaz. हमने तो 2 महीने पहले डिसाइड किया था, हमें पता नहीं, मतलब अभी डिसाइड हुआ है क्या 3 का? Sir, actually Teen, नहीं, Irfan Teen was clashing with Sarabjit. So Teen got postponed and now your film will be clashing with Teen. तो I think 3 फिल्में आ सकती हैं 10 जून को। So no problems in taking on Amitabh. क्या है यार, वो लोग बड़े लोग हैं, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उनकी भी फिल्म देखने जाएं, हमारी भी देखने जाएं। हमारी ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर पूरी ऑडियंस अगर दोनों फिल्मों में आ जाए तो बहुत है, काफ़ी है। आपका जो फिल्म में कैरेक्टर है इसका नाम क्या है? निर्मल। तो बिफोर यू शॉट टू स्टारडम, any moment in your life where you could relate to Nirmal, because obviously the film shows that आम आदमी के लिए इतने ज़्यादा privileges नहीं होते, but just because वो होम मिनिस्टर का बेटा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली आप उसी तरह के होते हैं, हर आदमी उसी तरह का होता है जो एक आदमी कानून मान के एक आम जिंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाह रहा है, जो छोटा मोटा धंधा करता है और जो उसका परिवार है, उस परिवार में वो खुश है, उसको किसी तरह की शिकायत नहीं है। वो सारे सिस्टम को समझते हुए को एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी वही थे जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, मतलब कोई जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, बट आप किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है नॉर्मल रख के आप गुजारना चाहते हो उसको। तो आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी तो वैसी ही रही है बिफोर यू बिकेम एन एक्टर। You know, you are playing a cop in this film, and as always, you are looking fantastic.
but you know, slightly there it reminds us of your character in a Wednesday, and even the concept looks similar of you chasing a common man. So what do you have to say about that? इतना तो मुझे ट्रेलर में दिखाया नहीं है कि आप ऐसा बोल दें कि भैया आप वेडनेसडे जैसे लग रहे हो। वेडनेसडे में एक अलग किरदार था, उसकी लुक अलग थी, उसका सब कुछ अलग था। ये तो पता नहीं कैसा अजीब सा सवाल आपने किया। इसमें कौन बोल सकता है वेडनेसडे का? वो सिर्फ जिमी है सेम उसमें, बट अदरवाइज वो उसके सफ़ेद बाल दिख रहे हैं साइड से, सारा कुछ है। वो एक डिफरेंट किरदार जो है वो करने की कोशिश की गई है। और बाकी फिल्म की मेन चीज़ है आई थिंक एक कहानी ऐसी है जो आपको मज़ा भी देगी, बिकॉज इट्स अ थ्रिलर। ऑब्वियसली आपको मज़ा आने वाला है कि एक अच्छी अलग कहानी मिल रही है सुनने को, बट कहीं ना कहीं एक भड़ास होती है हम सबके अंदर जो कहीं ना कहीं किसी फिल्म में अगर निकलती दिखे तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर आप उसको और इन्जॉय करते हो और वो बार बार देखना चाहते हो कि वो भड़ास बार बार दिखे मेरे को, क्योंकि मैं बाहर जाके तो ये भड़ास निकाल नहीं सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसी फिल्म है जो आप डेफिनेटली वो अपनी अंदरूनी भड़ास निकालने के लिए आप बहुत एंजॉय करेंगे। Talking about the movie of Wednesday, that was about a common man who takes matters into his own hands. Does this movie has some resemblance to that because Desh Sora is the tagline? See, the backdrop of the film has a certain issue. That is why you have Desh Sora as the title. Whereas the character is definitely a simple guy, and something tragic happens in his life. And what can be a repercussion? What can be the repercussion of such thing? It can go in any way. Like, I'm sorry, I'm again giving example of my film in Mumbai Meri Jaan. It was not about the Holocaust. It was not about the train blasts. It was about what happens to people because of such a tragedy. So similarly, it is a story of a man after he goes through a tragedy. What happens to him? कौन कौन सी रियल हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और ये फिल्म वही उस आदमी के बारे में जो एक स्टैंड लेता है और वो अपने अंदर का हीरो ढूंढता है। हमें लगता है कि हर आदमी के अंदर एक हीरो, एक विलन छुपा होता है, वो उसके चॉइसेस पर है कि वो क्या चूज करता है। कौन कौन सी रियल घटनाएं हैं जिनसे इंस्पायर है, जिनको देखो रियलिटी के अराउंड ही है पिक्चर, क्योंकि किरदार सारे रियल है, मतलब आम जैसे हमारे आपके जैसे ही हमारे सारे किरदार है। तो रियलिटी आप यूँ समझो कि रियल सीक्वेंसेस से ज़्यादा रियलिटी बहुत क्लोज है। मतलब अगर मुझे राजस्थान में शूट करना था तो हम लोग गए थे ऑलमोस्ट जैसलमेर बॉर्डर, वहाँ पे शूटिंग की हम लोग ने डेजर्ट में। फिर कहीं हमको शिमला में करना था तो शिमला जाके शूटिंग की, हरियाणा में करनी थी तो हरियाणा में की, दिल्ली में करनी थी तो वी वेंट एंड ट्राइड टू बी ऑन ऑल रियल लोकेशंस, ऑल रियल प्लेसेस, ट्राइंग टू गेट ऑल रियल फेसेस. So that is the reality more than a real incident. So approached for the film adaptation of Jhumpa Lahiri's Interpreters of Melody. How true is that? No, it was long back and I'm out of that. Okay, you're not going to do it. Hello. इरफान, आपके करियर में जिन निर्देशकों का आपको साथ मिला, चाहे तिग्मांशु धूलिया हो या आसिफ कपाड़िया हो या अब निशिकांत के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं, कितना श्रेय देंगे इन निर्देशकों को इन सारे अपने करियर में? आई थिंक बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि दे शेप द स्टोरी। एंड आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, लोग परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, लोग अच्छी फिल्म होती है तो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं जिनके के नाम पे सिर्फ जो है लोग पैसा खर्च करेंगे। जब तक कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं होगी, लोग सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं आते हैं। हम उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम सिर्फ खड़े हो जाएं आके और थोड़ा सा मटका किया एंड देन लोग पैसे फेंकने लगते हैं। हमें बहुत थोड़ा हमारी फिल्म तभी लोग देखते हैं जब उसमें कुछ होता है, और उसमें डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। और इन लोगों ने मुझे शेप किया एक्चुअली एज एन एक्टर। मेरे डायरेक्टर्स अगर मुझे नहीं मिलते तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अंडरस्टूड एक्टिंग द वे आई अंडरस्टैंड नाउ। ऑन योर लेफ्ट, इरफान, हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें?
क्योंकि फिल्म का टाइटल मदारी है, तो जो मदारी होता है वो अपने जमुरा को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड होता है। तो क्या आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसे लेके आप दोनों काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, और क्या है वो चीज़? आप दोनों फर्स्ट। जी मदारी और जमूरे का देखिए ये एक स्टेटस गेम है। एक आदमी नचाता है, एक नाचता है। जमूरा नाचता है, मदारी नचाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं कभी जमूरे होते हैं, कभी मदारी होते हैं। आप अपने ऑफिस में जाती हैं तो आप जमूरा हैं कि मदारी में, आपको पता नहीं। आप दोनों की लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप दोनों ऑब्सेस्ड हैं? किसी चीज़ को लेके तो होंगे सर। कुछ चीज़ें हैं जिसको कि मीडिया के सामने नहीं बोला जा सकता। इरफान, इस तरह सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ जी, आप बता दीजिए। आप वो सही बोल रहे हैं, सबके सामने थोड़ा बोल रहे हैं। जैसे कि आपका जो कैरेक्टर है या फिर जो कॉस्ट्यूम वगैरह है वो केजरीवाल जी से इंस्पायर है, क्या ये बात सही है? मफलर, शर्ट, कैसे आम आदमी वाला केजरीवाल कहाँ से आपको लग रहे हैं? मैंने इतनी कोशिश की, बेचारे मेकअप मैन हमारे जो है मेकअप टीम, उन्होंने इतने बाल बढ़वाए, दाढ़ी लगवाई, केजरीवाल कहाँ आ गई? तो आप थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट करेंगे तो दूसरों से मैं थोड़ा ज़्यादा सिमिलर लगूंगा। आप थोड़ा ध्यान शिफ्ट करके देखिए, ज़रा और पार्टियों में ज़रा नज़र दौड़ाइए तो किसी और से मैं थोड़ा सिमिलर लग सकता हूँ। था जी जी, वो आपके बेटे का लिखा हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ बताइए। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई साहब एक सूरत दिखा दीजिए इनको। Ayan is his Irfan son, तो big round of applause for him. शुक्रिया बोल दो। Thank you for coming. I didn't know you guys would take the letter seriously, but I'm glad you did. So thanks. या तो इन्होंने एक्चुअली इनसे रिक्वेस्ट की गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको इन्वॉल्व करूं पब्लिसिटी में या नहीं करूं, बट सब लोगों की राय ये थी कि बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल एंड इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल्सो फादर एंड मदर, ऑल्सो फादर एंड सन, सो दे थॉट कि इफ़ ही इनवाइट्स, सो इनसे हमने अप्रूवल लिया। हमने कहा कि आप लिख देंगे, तो इनको अपने कामों में व्यस्त थे ये, तो इनको थोड़ा टाइम लगा कन्विंस करने में। फिर हमने कहा कि हम लिख दें, उसको आप ठीक कर दोगे? तो इन्होंने कहा अच्छा लिख दीजिए। तो हमने लिखा तो इन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया उसको, मुंह बनाया कि अरे नहीं ये नहीं। सो देन ही रोट हिमसेल्फ एंड देन बहुत ही प्यारा लेटर, बहुत अच्छी। Shutapa, Irfan, you are also playing APJ Abdul Kalam's biopic in Pramod Gore's film. So tell us something about that. Ooh, when? I would love to play him although. Are you approached for that? No. नहीं, सिर्फ कैरेक्टर ही तो मतलब इस तरह के कैरेक्टर हैं, इनको कौन नहीं करना चाहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कौन बना रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर के बिना एक्टर बिल्कुल जो है अधूरा है। जब तक कि डायरेक्टर उस तरह का नहीं होगा, फिर कुछ भी कैरेक्टर कर लीजिए आप, वो उसका कुछ होगा नहीं। आप बहुत उम्दा राइटर हैं, मैंने आपके साथ काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत डिफरेंट लिखती हैं। ये फिल्म आपकी जो दूसरी फिल्में जैसे शब्द वगैरह आपने लिखी हैं, उनसे कितनी अलग है? ये एक्चुअली मैंने लिखी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तैयार किया। लिखा रितेश ने है ये फिल्म, रितेश शाह। और तो मैं ये फिल्म कैसे डिफरेंट है मेरी लिखाई के हिसाब से मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी, लेकिन ये फिल्म जो मैंने फिल्में की हैं उनमें से ज़रूर डिफरेंट है, क्योंकि ये फिल्म इज़ अबाउट कंसर्न्स, अदर्स वेर अ लिटिल अबाउट फैंटेसी और थ्रिलर, और बट दिस इज़ ऑल्सो थ्रिलर बट विद डेफिनेटली विद अ डीपर कंसर्न, दैट्स द डिफरेंस। इरफान, आप भी एनएसडी से हैं, नवाज भी एनएसडी से हैं, तो कुछ डर रहता है क्योंकि उनको पब्लिक बहुत पसंद कर रही है, बेहतरीन से 2 लोग आए क्या? एनएसडी से बहुत आए हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं वो जी। तो कोई एक उनकी फिल्म जो आपको बेहद पसंद आई हो, कोई आप उनसे मिले हो, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो? मुझे उनकी लंच बॉक्स बहुत पसंद आई थी जिसमें उनका काम ज़्यादा सराहा गया। मैं देख नहीं पाया यार। जी इरफान, मैं तो ज़रूर बताऊंगा जी। जैसा कि आपने बताया, क्योंकि हासिल फिल्म में आपने एक डायलॉग शेयर किया था अभी, उसमें एक अडल्ट डायलॉग भी था जो आप जिमी शेरगिल से कहते कि सेक्स हो गया क्या? तो ऐसी बातें आप ऑन साइड ऑफ साइड करते हैं क्या आपस में? मैं एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, मैंने डायरेक्टर को बोला भी, हम साथ में ही थे, तो मैंने कहा कि यार ये सेक्स हो गया क्या, ये डायलॉग मुझे ठीक लग रहा है। मैंने कहा हम बोलते हैं संभोग हो गया क्या, तो वो उनको पसंद नहीं आया। और ऑफसेट में क्या करता हूँ वो हम मिलके बात कर लेंगे बाहर।
कुछ अटपटा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? अटपटा नहीं हुआ है, आई थिंक बहुत स्मूथ था एंड इट वाज नॉट, it never felt like we are shooting, you know. There's no, it's a pin drop silence, everybody knows what they are doing, and it was the most enjoyable and most peaceful shooting I had. Many congratulations for the trailer. आप जो प्रोजेक्ट चूज करते हैं वो बहुत ही स्प्लेंडेड रहती है, और एक फ्यूचर प्रोजेक्ट था आपका कंगना के साथ, डिवाइन लवर्स. ऑडियंसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक पावर पैक परफॉर्मेंस मिलेगा आपका और कंगना के साथ में, बट कह सकते हैं वी हैव लॉस्ट आउट ऑन सीइंग अ पावर पैक परफॉर्मेंस. आई थिंक मुझे ही पता नहीं कि मैं डिवाइन लवर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत दूर है वो फिल्म ना, वो कभी आती है चली जाती है, और कंगना अब इतनी पहुंच के बाहर हो चुकी हैं कि अब उनके साथ अगर हीरोइन बनने का मुझे शौक है तो मैं ज़रूर करूँगा. अगर वो हीरो बने और मैं हीरोइन बनूँ तो मैं ज़रूर करूँगा. कोई ऐसा स्क्रिप्ट आए जिसमें कि वो हीरो हैं और मैं हीरोइन हूँ, मैं ज़रूर करूँगा. टैगलाइन है देश सो रहा है, तो आपको क्या लगता है देश पे अभी जगाने की ज़रूरत है? देश को, जी, आपसे और जिमी दोनों से. अरे साहब ये तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, ऐसे थोड़ी है. आई थिंक आदमी को अपने बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके राइट्स क्या हैं और उसकी अपनी जिम्मेदारी क्या है. खाली राइट्स तो सब मांगते हैं लेकिन जिम्मेदारी भी क्या है. आदमी अपने बारे में चिंता कर ले, वही बहुत बड़ी बात है. और तभी उसको समझ में आता है कि वो सिस्टम के बारे में तभी समझ पाता है जब वो अपने बारे में समझ सके. तो ये मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं, उसके बारे में आप क्या, और बहुत सा अच्छा काम भी हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक भी होनी है. तो ये तो लंबा चैप्टर है, उसको ऐसे मतलब फिल्म में कैसे समेट लेंगे हम. She deserves that tag. Oh yes, she deserves much more, you know, what she is doing and the way she has reached there in such a small time, and with so much of recognition, and you know, she's doing great. And that industry is not easy. It's something which is happening out of this world, and she deserves all praise. And I'm sure, you know, there will be many more people which will you know, get their name there in the industry, and many more directors would travel. You know, I hope many directors should travel because they are talented. Our country has such a talented directors, and you know, they must go and work there. Thank you so much, Irfan. Thank you so much, sir. Just do stay on stage. I'd like to call everyone. Ek second. The cast and crew and everyone involved with the film, I'd like to call on stage, including you. My crew's there. Should I call them? Yeah, very long. All right, it's my DOP not that longer journey. Please, everyone on stage. Arif Sheikh. Hello. My writer Ritesh Shah. Oh, Ritesh is here. Yes, Ritesh is here. Ritesh, please come. Bhau and gang, aa jao. Costume. And of course, my direction department. और direction Sachin, department Bhau, और Ritesh.